Hello students, in this video we are going to discuss some more questions on dot product of scalars. So the question is, write the value of lambda so that the vectors A is equal to 2i plus lambda j plus k and B is equal to I minus 2j plus 3k are perpendicular to each other. Means that two vectors are given, A and B, and both vectors are perpendicular with each other. So we have to find out the value of lambda. So we know very well that the condition of being perpendicular to vectors, if two vectors are perpendicular, then A dot B is equal to 0. This is the condition, that dot product of both the vectors will be 0. So we'll put the value of A and B, 2i plus lambda j. Lambda is like a constant here, and dot I minus 2j plus 3k is equal to 0. When you will multiply both the vectors, then it will be 2 into 1 plus lambda into minus 2 plus 1 into 3 is equal to 0. So it will be 2 minus 2 lambda plus 3 is equal to 0. Okay. So it will be 5 is equal to 2 lambda. Therefore lambda is equal to 5 by 2. So the value of this scalar lambda is equal to 5 by 2. Now the next question is, find the magnitude of each of the two vectors A and B. मतलब A और B दोनों का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है. हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड मीन्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, such that the angle between them is 60 degree and their scalar product is 9 by 2. So what is given? Given that magnitude of A and magnitude of B is same and theta is equal to 60 degree and the scalar product is 9 by 2. Okay, so we know that the scalar product of both the vectors is equal to magnitude of both the vectors into cos theta. So the value of A dot B is 9 by 2 and A and B both are same, and cos theta, theta is 60 degree. So 9 by 2, this will be square, and cos 60 will be 1 by 2. So 2 into 9 by 2 is equal to square, 2 is cancelled with 2, so A will be equal to plus minus root 9, so A will be plus minus 3, and since the magnitude cannot be negative, so that's why it will be equal to 3. And since both the vectors are, the magnitude of both the vectors is equal, therefore it will be equal to 3. C. Write the projection of vector I minus j on the vector I plus j. Okay, so to find out the projection, we know that the projection
of A on B will be equal to dot product of both the vectors and upon the magnitude of second vector, जिसके लिए कहा जाता है कि ऑन द वेक्टर, जिसके लिए कहा जाता है वो डिनोमिनेटर में आता है. सो यहाँ पर हम ए और बी जो हमारे दोनों वेक्टर्स हैं उनका हम पहले डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और अपॉन में i प्लस जे का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे. तो यहां पर होगा द स्केलर वैल्यू ऑफ दिस कंपोनेंट विल बी 1 into 1 प्लस दिस विल बी -1 into 1 अपॉन √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. इसका जो स्केलर कंपोनेंट होता है उसका स्क्वायर और जे के स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर. सो इट विल बी 1 - 1 अपॉन √2. दिस विल बी 0 अपॉन √2 मीन्स 0. सो 0 विल बी द प्रोजेक्शन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज vectors a, b and c are such that a plus b plus c is equal to 0 and magnitude of a, b and c are 3, 5 and 7 respectively. Then find the angle between a and b. So we have to find out the angle theta. So how we'll find out that? See here, the given a plus b plus c is 0. Therefore a plus b is equal to minus c. Squaring both the sides, so it will be a plus b square is equal to minus c square. Okay, and the meaning of this is a plus b is multiplied with a plus b, and this is c square. Now when you will multiply it, then a into a into b plus b into a and plus b into b, and it will be equal to c square. So in the properties we have mentioned that a dot a will be equal to a square and a dot b will be equal to b dot a. These are the properties. So इन properties को यूज करके और हम यहाँ पर लिख देंगे a square plus 2ab plus b square is equal to c square. अब हम जानते हैं a dot b is equal to magnitude of ab cos theta. So again आप जब यहाँ अप्लाई करेंगे सो हमें जो वैल्यूज गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इट इज 3 स्क्वायर प्लस 2. इस a डॉट b जो स्केलर प्रोडक्ट है उसकी जगह पर हम रखेंगे magnitude of a magnitude of b cos theta plus magnitude of b will be 5 square is equal to 7 square. Okay, so it will be 9 plus 2. Now
वी शुड पुट द वैल्यू ओवर हियर. अभी हम नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख देंगे. +25 इज इक्वल टू 49. सो ये हो जाएगा 2 इंटू द वैल्यू ऑफ a इज 3 एंड वैल्यू ऑफ b इज 5 इंटू cos थीटा is equal to 49, and that 9 plus 25 will be 34, so it will be minus 34. Now cos theta is equal to 49 minus 34 will be 15, and 5 3 ja 15 2 ja 30, so it will be 1 by 2. So cos theta is equal to 1 by 2 means cos theta is equal to cos 60. It is actually cos 60. Therefore theta is equal to pi by 3. हमें थीटा ही फाइंड आउट करना था, ए और बी के बीच का एंगल, तो वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया. अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स ए with a unit vector along the sum of b and c is 1. It means क्या हुआ कि sum of vectors b और c का जो sum है उसका जो sum है किसके along, वो यूनिट वेक्टर इसके along. मीन्स a unit vector along the sum of vectors this and this. It means b और c का हमें पहले तो यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है, इनके सम का. तो इनके सम का जो यूनिट वेक्टर होगा उसका स्केलर प्रोडक्ट किसके साथ है, a के साथ है. देखिए आप, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, तो इसका स्केलर प्रोडक्ट और किसका, विथ अ यूनिट वेक्टर, उस यूनिट वेक्टर के साथ जो कि along the sum of vectors b and c, b और c का जो सम है उसका जो यूनिट वेक्टर है उसका इस a के साथ जो स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है, वो कितना है, 1 है. तो फिर हमें लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर उस b प्लस c के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है उसकी भी वैल्यू निकालनी है. ये दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है हमें. तो आप देखिए सॉल्यूशन. सबसे पहले b प्लस c के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालना है. तो यूनिट वेक्टर along b plus c will be b plus c upon मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस सी. मीन्स वो जो वेक्टर होगा वो वेक्टर और उसको डिवाइड करेंगे हम उसके मैग्नीट्यूड से. तो ये यूनिट वेक्टर होता है, ये हमें पता है. तो हम अब पहले b प्लस सी भी निकाल लें और b प्लस सी का मैग्नीट्यूड भी निकाल लें और फिर यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे. ओके, सो b plus c will be 2i plus 4j minus 5k plus lambda I plus 2j plus 3k. ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स का सम. सो इट विल बी 2 plus lambda I plus 4 plus 2 6j and minus 5 plus 3, so it will be minus 2k. This is b plus c. और अब इसी का मैग्नीट्यूड. So magnitude of b plus c will be 2 plus lambda square plus 6 square plus minus 2 square. So it will be 2 plus lambda square plus it will be 36 and it will be 4.
so it will be 2 plus lambda square plus 40. ये हुआ मैग्नीट्यूड. अब यूनिट वेक्टर निकालना है. सो आप देखिए कंडीशन क्या है कि ए जो है, ए का स्केलर प्रोडक्ट किसके साथ, बी प्लस सी के अलोंग यूनिट वेक्टर के साथ, और बी प्लस सी के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ये बी प्लस सी के अलोंग यूनिट वेक्टर हुआ. और इन दोनों का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो 1 है. ये हमें गिवन है. ठीक है. तो अब आप यहाँ पर a की वैल्यू अगर रखेंगे तो वो हो जाएगी i प्लस जे प्लस के, और उसके साथ स्केलर प्रोडक्ट है b प्लस सी. अब आप देखिए b प्लस सी की वैल्यू क्या है. b प्लस सी की वैल्यू है 2 प्लस लेमडा आई प्लस 6j माइनस 2k एंड अपॉन रूट 2 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 40, और इन का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 1 है. नाउ आप देखिए ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके इस तरफ चला जाएगा 1 में मल्टीप्लाई होके, और यहाँ पर इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, आप देखिए दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, स्केलर स्केलर कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं. सो 1 इंटू 2 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा, 1 इंटू 6 प्लस 6 एंड 1 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू रूट 2 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 40. ओके. सो अभी मैं इसे प्लस नहीं कर रहा हूं, अभी मैं 2 प्लस लेमडा को एज इट इज रख रहा हूं. प्लस 6 माइनस 2 हो जाएगा 4. मैं इसको 4 प्लस 2 6 भी कर सकता हूं, बट मैं अभी उसे ऐसा नहीं कर रहा हूं. ठीक है. इज इक्वल टू 2 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 40. अब आप देखिए इसे मैंने एक ब्रैकेट में रखा और मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड, जब स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस लेमडा प्लस 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर से रूट हट जाएगा और ये 40 आ जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दूंगा. तो अब जब मुझे इसका होल स्क्वायर लगाना है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 2 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 40. ये हो जाएगा 2 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8 इंटू 2 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 2 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 40. ऐसा मैंने इसलिए किया था क्योंकि अदरवाइज जब आप यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते तो आपको वहाँ पर अलग से उसको एक्सपांड करना पड़ता. अब यहाँ पर आप 2 प्लस लेमडा स्क्वायर से 2 प्लस लेमडा स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो. ठीक है. अब ये हुआ 8 इंटू 2 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 40 माइनस 16. So 8 into 2 plus lambda is equal to, it will be 24. 2 plus lambda is equal to 24 upon 8. So 2 plus lambda is equal to 3 and therefore lambda is equal to 1. आप यहाँ पर उसको वहाँ
लेमडा प्लस 6 करके भी अगर आप स्क्वायर करते हैं तब भी आपका ये आंसर आता। ठीक है, ये दो अलग अलग तरीके हैं। तो यहाँ लेमडा इज इक्वल टू 1। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था, देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। तो लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, एंड हैंस फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग बीसी। और यूनिट वेक्टर अलोंग बीसी जो हमारा था, वो यूनिट वेक्टर अलोंग बीसी हमारी वैल्यू थी, ये देखिए, ये यूनिट वेक्टर अलोंग बीसी था 2 प्लस लेमडा आई प्लस 6j माइनस 2k अपॉन 2 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 40। सो अब आप देखिए यूनिट वेक्टर अलोंग बी सी जो हो जाएगा वो बी प्लस सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस सी। तो ये हमने वैल्यूज पहले ही रख दी थी ऊपर। अब यहाँ पर बस लेमडा इज इक्वल टू 1 रखना है हमें। तो 2 प्लस 1 आई प्लस 6j माइनस 2k अपॉन 2 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 40। So it will be 3i plus 6j minus 2k upon 2 plus 1 3 square 9 plus 40 49. So it will be 3i plus 6j minus 2k upon 7. It will be 3 by 7 I plus 6 by 7 j minus 2 by 7 k।